means someone is advising to someone. Understood? Okay, I want one more sentence which begins with a verb. You have to keep that in mind. Only request वाला जो sentence होता है उसमें please आ जाता है. Please के बाद verb आता है. Otherwise, please keep quiet. तो keep is verb. Okay. But request में क्या होगा? Please आ जाता है. Please keep quiet. So these are all imperative sentences. Now last one. What is the last? Exclamatory. Put the heading as exclamatory. Heading. Put the heading as exclamatory. Ma'am, it always ends with exclamatory mark. No, so it is not always ends with an exclamatory mark. Sometimes you have to begin it with a exclamatory word like oh, ouch, alas, okay, and you can put the exclamatory mark in the after that word also, or you can put exclamatory mark at the end of the sentence also. दोनों हो सकता है. Okay. For example, what a lovely day. What a lovely day. Very good. Write it. What a lovely day. You can write the exclamatory mark at the end of the sentence. You can put the exclamatory mark at the end of the sentence. It is admiring. You are admiring what a lovely day. And the second one, in which you have to use some exclamatory word. Oh, ouch, ऐसे करके बोलो कोई एक sentence. Oh, so sad news. बोलते हैं ना, oh, it is very sad news. Oh लिख के exclamatory mark लगाओ. First to write oh, लिखो. Oh, then put exclamatory mark. Now you write a very sad news. Then you will write full stop. Yes, ma'am, we also use exclamatory mark like this. Then you write put full stop at the end. अब एक और सेंटेंस अपनी तरफ से बताओ. यूजिंग ओ, आउच, अलास, कुछ भी. What is alas? अलास भी यही होता है, दुख में यूज करते हैं, सैड में यूज करते हैं. Alas, he get died. नहीं, अगर वो ही गेट डाई तो मतलब यही होगा ना कि वो मर जाए. तो तुम्हें बोलना है अलास वो बच जाता. ओके, तो अलास लिखो पुट अलास, ALAS. Okay. Then exclamatory mark. He may live. He could live. ऐसे कर दो, he could live. Alas, he could live. अगर वो बच जाता. Full stop. Understood? So these are types of sentences. Now the next main heading is forms of sentences. Types of sentences are not so difficult because you are now in class 8, so you have already learnt all these things. Next, the next main heading, put the main heading as forms of sentences. Look, FORMS, forms of sentences. Okay, the first is simple sentence. What is the meaning of simple sentence? Ma'am, they are simple sentences. Hmm. Ma'am, Simple. we write a sentence that are written simply. Okay, simple sentence means where one subject is there and one predicate is there. Okay, and which gives you full meaning. One subject is there, one predicate is there. Okay, बस एक ही subject और एक ही predicate है. That is called simple sentence. Now give me an example.
sentence. हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. What are you doing? हाँ, So, व्हाट आर यू डूइंग हो सकता है, पर एक सिंपल ऐसे ही सेंटेंस बोलो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक बोलो जिसमें मैं आगे और सिखाऊंगी. सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज. क्लॉज पढ़ा है क्या तुमने? my class. हाँ, क्लॉज पढ़ा है, नहीं पढ़ा कल तो नेक्स्ट बताऊंगी. अभी ये कर लो. सिंपल सेंटेंस में ओनली राइट सिंपल सेंटेंस, वन एनी वन सिंपल सेंटेंस. She is going to the market every Sunday. ओके, लिख लो. शी इज गोइंग टू द मार्केट एवरी संडे नहीं होगा. जा रही है हर संडे कैसे हो सकता है? शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे. शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे. You are written. ओके, यू हैव रिटन शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे. अब एक और सेंटेंस को एंड के साथ इसमें जोड़ना है. ओके, लिख लो शी गोज टू द मार्केट. अब नेक्स्ट हेडिंग ये दिस इज सिंपल सेंटेंस हो गया. ओके, नाउ पुट द हेडिंग एज कंपाउंड सेंटेंस. COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड में क्या होता है? व्हेन टू सिंपल सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय एंड और बट और एक्सेट्रा, तो वो हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, दो सिंपल सेंटेंस. शी वेंट टू द मार्केट क्या है? शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे एक सेंटेंस हो गया. शी बाइज वेजिटेबल्स. शी बाइज वेजिटेबल्स. ठीक है, वो हर संडे मार्केट जाती है और शी बाइज वेजिटेबल्स एवरी संडे. दूसरा एवरी संडे लिखो ना लिखो, शी बाइज वेजिटेबल्स. दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? शी बाइज वेजिटेबल्स. अब दोनों सेंटेंस को हम अगर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ोगे? Ma'am, can you repeat that both two sentences? ओके, फर्स्ट यू राइट. अभी लिखो, फिर मैं बताती हूँ. पहले इसी सेंटेंस को लिखो. कंपाउंड के नीचे लिखो सेंटेंस वन. Yes, ma'am. She goes to the market every Sunday. Yes, ma'am. Second sentence लिखो. She buys vegetable. BUYS. She buys vegetables. Full stop. Ma'am, to join is हाँ, अब थर्ड सेंटेंस लिखो. थर्ड में बताती हूँ. थर्ड लिखो. She goes to the market every Sunday and by vegetables. and buys vegetables. Yes, she goes to the market every Sunday and she buys vegetables. Full stop. अब फुल स्टॉप एक ही बार आ गया. पहले क्या था? दो फुल स्टॉप लग रहे थे अलग अलग. अब एक ही फुल स्टॉप लग रहा है. दो सेंटेंस को आपने जोड़ दिया एंड से. समझ में आ गया? ओके, अब ऐसे ही एक बट वाला सेंटेंस बनाना है हमें. फर्स्ट यू राइट इट, देन आई विल टेल यू. अब एंड को अंडरलाइन कर लो. Okay, ma'am. तो कंपाउंड Sentence one. हाँ, वन मोर सेंटेंस But बट वाला. दैट मीन्स बट में क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट होगा. okay, ma'am. इसी को कर लो, मैं बताती हूँ. अभी इसी को करो फिर. Take a sentence, ma'am. See, he is topper in our class. ही इज अ टॉपर इन आवर क्लास. ओके, लिखो. दैट इज सेंटेंस वन.
सेकंड सेंटेंस क्या लिखोगे? इसी से लिखना, इसी से रिलेटेड होना चाहिए. Yes, ma'am. Yes, sir. He get failed in a science test. He gets low mark. He got past tense ना. He got low marks in the lowest marks कर सकते हो. He got the lowest marks in the science test. Yes, ma'am. Tell you. Okay, now how will you join these two sentences? Third sentence इन दोनों को join करके लिखो. He is topper in our class, but he got lowest mark in science test. Very good. Write it down. Very good. Absolutely right. Very good. So this is called compound sentence. अब but को underline कर देना. ओके, अब इसी को हमने जो दो येट सीखा था उससे कैसे करेंगे? हमने सीखा था ना दो और येट. कैन यू गिव दिस सेंटेंस यूजिंग दो और येट? Going yet. बोलो. एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ ईच अदर. ठीक है ना? इसी सेंटेंस को हम दो और येट में कैसे कर सकते हैं? Ma'am, that both two sentences one. लास्ट वाला, सिर्फ लास्ट वाला, बट वाला जो Then सेंटेंस. only last. हाँ, दो ही इज अ टॉपर. देखो, दो ही इज अ टॉपर इन आवर क्लास. He got lowest mark. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. वेरी गुड. राइट इट डाउन. लिखो. अच्छा, अब इसी सेंटेंस को ऑल्दो करके कैसे लिखोगे? Although he is a topper in class, yet he get नहीं, lowest ऑल्दो के साथ येट नहीं लगेगा. ऑल्दो ही इज अ टॉपर इन द क्लास, कॉमा ही गॉट, बट येट कुछ नहीं लगेगा, कॉमा ही गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन द साइंस टेस्ट. Right. Okay. I hope you understood what is compound Yes, sentence. Acha. Now third type of sentence is complex sentence. Put the head complex. COMPLEX. Complex sentence. Okay. Complex sentence समझ लो पहले. Complex sentence is again joining two or three sentences, but
उस पर उसमें एंड बट और नहीं लगता, उसमें क्या लगेगा, हु, वॉट, व्हेन, वेयर, ऐसे करके करते हैं, ठीक है। चलो एक सेंटेंस अभी सोचते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखो, फर्स्ट विल बी अ प्रिंसिपल क्लॉज, आई नो अ बॉय, लिखो आई नो अ बॉय, दिस इज वन सेंटेंस। पहले ऐसे कर लो, सेंटेंस वाइज अलग अलग लिख लो तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज आई नो अ बॉय, फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस में लिखो, हु इज वेरी पोलाइट, हु इज वेरी पोलाइट। Yes, ma'am. थर्ड सेंटेंस लिखो, he respects his elders। Yes, ma'am. ओके, अब तीनों सेंटेंस को ज्वाइन करो, कैसे करोगे? आई नो अ बॉय, लिखो आई नो अ बॉय। फोर्थ सेंटेंस लिखो, आई नो अ बॉय Yes, ma'am. who is very polite and respects his elders, so it will become one sentence, Ma'am, who respect his elders and respect his elders, who is very polite and respects his elders। Yes, ma'am. समझ में आ गया? तो एक सेंटेंस में 3 सेंटेंसेस है, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस भी है, कंपाउंड भी है, और थर्ड हु वाला कॉम्प्लेक्स भी है। इसी का एक और सेंटेंस अभी सोचो। टुमारो अगेन वी विल डू दिस थिंग्स, ठीक है, तब जाके क्लैरिटी आएगी। एक सेंटेंस अभी और कॉम्प्लेक्स का बोल दो, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। एक सेंटेंस और हम कॉम्प्लेक्स का करते हैं, चलो बोलो। लिखो, ही टोल्ड, मैं बोल देती हूँ, अभी तुम लिखो। I know a girl who, from this first sentence, I know a girl from the second sentence is who played the she is a master in tennis. From third sentence, he will teach you nicely. शी विल, ही नहीं, शी विल। Sorry, ma'am, she will. चलो लिख लो, तीनों को लिखो। Ma'am, third sentence, who will teach you nicely. शी तुमने बोला ना, शी विल टीच यू नाइसली, शी विल टीच यू नाइसली। Yes, ma'am. ओके, चलो अब इसका फोर्थ सेंटेंस बनाओ आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल 3 सेंटेंसेस। I know a girl. She is master. Who is Who is master in tennis, and and she will teach you nicely. and who will teach you, ये भी कर सकते हो। who will I know a girl who is master in tennis and simple कर दो, and will teach you nicely। And teach you nicely. राइट, एंड टीच यू नाइसली। तो आज तो हमने हु वाले किए हैं, अब कल हम थोड़ा सा वेयर या वेन वाले भी करेंगे, ठीक है।
व्हेन, हाउ, वेयर वाले भी करेंगे. तो टुमारो अगेन वी विल प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अंडरस्टैंड? अभी आज का आपका होमवर्क क्या है? राइट टू सिंपल सेंटेंसेस, राइट टू कंपाउंड सेंटेंसेस एंड राइट टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. इतना आज का होमवर्क है. ओके. एंड प्रिपेयर अ न्यूज टुमारो. थॉट बहुत दिनों से हो गया. स्पीच जो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे तो आप स्पीच कर नहीं रहे हो. अब तो कल एक जरा न्यूज आप करो. मेक रेडी न्यूज. ओके. ज्यादा नहीं करना है. 2 नेशनल न्यूज, 2 नेशनल न्यूज, 2 इंटरनेशनल न्यूज. एंड स्पोर्ट्स का तो वैसे आजकल सब जगह खेल बंद हो रखा है, तो भी अगर मिलता है एक स्पोर्ट्स न्यूज और एक वेदर फोरकास्ट. ओके. तो 2 नेशनल न्यूज याद रखो, भूल जाते हो. 2 नेशनल न्यूज, 2 इंटरनेशनल न्यूज, 1 स्पोर्ट्स न्यूज एंड वेदर फोरकास्ट. ठीक है. आपको कल न्यूज सुनाना है मुझे, परसों. मैम 2 नेशनल न्यूज, हाँ. 2 इंटरनेशनल न्यूज. वेरी गुड. और 1 2 is हाँ, मैम 1 स्पोर्ट्स न्यूज yes, 1 sports न्यूज और वेदर फोरकास्ट. मैम वेदर फोरकास्ट. हाँ. मीन्स व्हाट विल बी द टेम्परेचर, थंडरस्टॉर्म आएगा कि नहीं. और जैसे अभी वो ताउते ना ताउत ऐसा करके कोई वो आ रहा है ना, साइक्लोन आ रहा है केरला में. टुडे इट विल हिट गुजरात. यस्टरडे केरला में, गोवा में आया था. टुडे इट विल हिट गुजरात और महाराष्ट्र. ये सब एरियाज जो अरेबियन सी पे हैं, दीज एरियाज विल बी अफेक्टेड. ठीक है ना. तो उसके ऊपर एक न्यूज रेडी कर लेना. ओके. एंड हाउ द न्यूज विल, यू हैव टू से न्यूज मॉर्निंग में. पहले गुड मॉर्निंग, टुडेज न्यूज हेडलाइंस आर. फिर आप न्यूज बोलोगे, नेशनल न्यूज, फिर इंटरनेशनल न्यूज, फिर स्पोर्ट्स न्यूज, फिर फोरकास्ट, और एंड में क्या बोलोगे? हैव ए नाइस डे. अंडरस्टैंड? बाय दिस वे यू विल डिलीवर योर न्यूज, यू विल रीड योर न्यूज टू मी. ओके. समझ में आ गया? ये दो होमवर्क करके रखना. एंड आई हैव अ वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दैट आई विल सेंड यू. आप देख के रखना. ठीक है. तो कुछ डाउट भी होगा तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी. अंडरस्टैंड?